आदाब। जम्मू कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। जम्मू कश्मीर असेंबली के बजट इजलास का लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के खिताब से आगाज हुआ। 7 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। सिन्हा अपने खिताब में रियासत के दर्जे की बहाली, कश्मीरी पंडितों की वादी वापसी, अमन व अमान, सयाहत, सनत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मुख्तलिफ मुद्दों पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि हुकूमत रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए वादाबंद है। इसके साथ साथ अमन और भाईचारे की बरकरारी को भी यकीनी बनाया जाएगा। सिन्हा ने कहा कि वो वादी में कश्मीरी पंडितों की वापसी चाहते हैं। एलजी ने कहा कि बजट में समाज के हर तबके के ख्वाहिशात की अक्कासी होगी। Government is committed to the dignified rehabilitation of Kashmiri migrants back into the valley by ensuring a safe and secure environment. Efforts will be intensified to accelerate the construction of transit accommodation projects for migrant employees, providing them with suitable housing at designated locations. These initiatives reflect our dedication to restoring confidence, fostering inclusivity, and ensuring a stable and prosperous future for all communities in Jammu and Kashmir. One of the foremost aspirations of the people of Jammu and Kashmir is the restoration of full statehood. My government remains steadfast in its commitment to addressing this legitimate desire of the citizens of Jammu and Kashmir. My government recognizes the emotional and political significance of the statehood for the people and is actively engaging with all stakeholders to facilitate this process in a manner that ensures peace, stability, and progress. Tourism, a cornerstone of Jammu and Kashmir's economy, has witnessed unprecedented growth with a record-breaking number of tourist visits in 2024. Underscoring the region's global appeal. To further enhance the visitor experience, my government is implementing innovative projects to diversify tourism offerings and strengthen infrastructure. At the same time, my government remains committed to promoting sustainable tourism by ensuring the balanced distribution of tourist traffic and preserving the ecological integrity of popular destinations, ensuring long-term growth that benefits both visitors and local communities. Building on the success of last year's Yatra, my government remains committed to strengthening future arrangements by ensuring seamless logistics, enhanced infrastructure, and eco-friendly initiatives. Infrastructure development remains a key driver of progress with significant advancement in connectivity. The recent inauguration of Sonmarg Tunnel by the Honorable Prime Minister, along with the completion of 2 segments of the Jammu-Srinagar National Highway, Banihal Bypass and Ramban Bypass, has substantially reduced travel time. My government is committed to fast-tracking major connectivity projects by streamlining land acquisition, securing forest clearances, and addressing encroachment issues. Ongoing projects, including the expressway, national highways, and ring roads for Jammu and Srinagar, will be accelerated to ensure their timely completion. वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने हालिया वक्त में फौत हुए लीडरान को खराज अक़ीदत पेश किया। असेंबली में खिताब के दौरान उमर ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मसले कश्मीर को हल करने की कोशिश की। अटल बिहारी वाजपेयी ने पहल शुरू की और मनमोहन सिंह ने मसले कश्मीर के हल को यकीनी बनाने की कोशिश को आगे बढ़ाया। उमर ने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों एक ज़माने में मसले कश्मीर के हल के बहुत करीब थे और इसका क्रेडिट डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है। मनमोहन सिंह ने कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत से इक़दाम किए। उन्होंने जगती टाउनशिप कायम की और पंडित नौजवानों को रोजगार दिया। उमर ने कहा कि यहाँ तक कि कश्मीर रेल लिंक का संग बुनियाद भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रखा था। उमर ने कहा कि जब वो वज़ीर ख़जाना बने तो हमें बहुत बड़े मसाइल का सामना था, मगर उन्होंने कुछ इस्लाहात नाफिज की और अब हम एक इक़्तिसादी ताकत है। कि ये जो शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने की है, इसको आगे लेना जो है कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। और पूरी कोशिश की इस बात के बावजूद कि बीच बीच में हालात खराब रहे।
शायद अगर मैं ये कहूं कि जितना हम करीब दोनों मुल्क इस मसले को हल करने पे आए थे, उस दौर डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब और जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर पे, मुझे नहीं लगता है मैं अपनी ज़िंदगी में दोबारा वो दौर देखूंगा। जम्मू कश्मीर के अंदरूनी हालात को अगर आप देखें तो कहां कहां गिने। जब 2010 में हालात खराब हुए, जम्मू कश्मीर के लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए वर्किंग ग्रुप्स कायम हुए। उसमें हर पार्टी और मुख्तलिफ सोच रखने वाले लोगों को शामिल किया गया और उन वर्किंग ग्रुप्स के हवाले से जो मेजर्स उठाए गए, आज भी उनका मुकाबला नहीं है। कश्मीरी पंडितों को वापस लेने की बात तो बहुत की गई होगी, लेकिन अगर अमली जामा उसको पहनाया गया कभी, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के दौर में, जब उस वक्त हमारी कोalition सरकार के वक्त में उनके लिए नौकरियों का रिजर्वेशन करके हमने उन्हें तैयार किया कि वो वापस कश्मीर जाएं और वहां पे दोबारा बसें। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से अगर हम बात करें, जिस हाईवे का जिक्र जनाब एलजी साहब ने अपने खुतबे में किया, जम्मू श्रीनगर हाईवे, उसकी 4 लेनिंग का काम डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के दौर में, ये उनका तोहफा था जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। आज जब हम इंतज़ार कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब का कि वो आएंगे और इस रेल का पूरा उद्घाटन करेंगे, जो मैं उम्मीद करता हूं कुछ ही दिनों में होगा, लेकिन शुरुआत कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ा गया जब बानिहाल का टनल मुकम्मल हुआ और रेल वहां से गुजरी। तब मैं उस वक्त ट्रेन पे डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के साथ था, लेकिन कहीं ना कहीं उनको इस बात की तसल्ली होगी कि जिस काम की शुरुआत उनके दौर में की गई, उसको आज मौजूदा हुकूमत ने मंजिल तक पहुंचा दिया। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि वो तवक्का करते थे कि एलजी के इब्तदाई रिमार्क्स में 5 अगस्त 2019 को होने वाले वाक़यात के बारे में बात होगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। मुफ्ती ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी अरकान स्पीकर को हुक्म दे रहे हैं। अगर वज़ीर आला 370 को बहाल नहीं कर सकते, लेकिन कम अज़ कम इस पर बात तो कर सकते हैं। मुफ्ती ने कहा कि डेलीवेजर्स को रेगुलराइज करना ज़रूरी है। हम बिल पेश कर रहे हैं और दूसरों की हिमायत की उम्मीद कर रहे हैं। मुफ्ती ने कहा कि वो शराब की फ़रोख्त पर पाबंदी चाहते हैं। साथ ही महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्हें कहा गया कि अगर उनके दौर में शराब पर पाबंदी क्यों न लगाई गई। मुफ्ती ने कहा कि पहले शराब की कम दुकानें थी और अगर हमने शराब पर पाबंदी नहीं लगाई तो उमर अब्दुल्ला पाबंदी लगाए। मुफ्ती ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर के कैदियों की हालत जानना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कहा जा रहा कि इस पर बात न की जाए, कम अज़ कम सियासी कैदियों को वापस कश्मीर मुंतकिल करें। मुफ्ती ने कहा कि आप सिक्योरिटी फोर्स को ज़मीनें देते हैं, शाहराहों और दीगर मनसूबों के लिए देते हैं, मगर लोगों को बिल्डोज़र का सामना करना पड़ रहा है। मुफ्ती ने कहा कि हमारा हाल रोहिंग्या जैसा हो जाएगा। उमर अब्दुल्ला अरविंद केजरीवाल नहीं बल्कि नवीन पटनायक बनना चाहते हैं। मुफ्ती ने कहा कि सईद सलाहुद्दीन को किसने बनाया और 87 में धांधली किसने की। साथ ही मुफ्ती ने कहा कि उन्हें बीजेपी से सैलाब के बाद 80,000 करोड़ मिले, मगर एनसी को कुछ नहीं मिला। और अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगता है कि जो बीजेपी का जो एजेंडा है, जो उनकी पॉलिसी है जम्मू कश्मीर को लेके, कहीं ना कहीं ये जो अभी इतनी भारी अक्सरियत से लोगों ने जिस सरकार को चुना है उसका एक्सटेंशन बन गई है। जो अभी तक हम कहते थे, चिल्लाते थे, ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग उन हरकत को जो बीजेपी ने इन सालों की, उनको जायज करार देने की उसमें दौड़ में लगे हुए हैं। और जितना भी हमारा डिसएम्पावरमेंट हो गया 2019 के बाद, डिसपोजिशन हो गया है, उसको एड्रेस करने की कोई बात नहीं है कहीं पर भी। और अनफॉर्चुनेटली हमारे चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैं जी केजरीवाल नहीं बनना चाहता हूं। आपको कोई केजरीवाल बनने के लिए नहीं कह रहे हैं, मगर खुदारा अपने लोगों की इज्जत नफ्स, उनके हुकूक के लिए तो खड़े हो जाइए। ये मतलब चीफ मिनिस्टर बनना तो ठीक है, मिनिस्टर बनाना तो ठीक है, मगर इसका मकसद क्या है? आपको लोगों ने वोट किस लिए दिए हैं? इसलिए दिए थे कि जो पिछले 2019 से यहाँ पर जो एक माहौल बना है,
जो हमें बेइख्तियार किया जाता है, जो हमारी प्रॉपर्टी, हमारी जो मिनरल्स से, हमारे जॉब से, हमारी नौकरियों से, हर चीज से हमें आहिस्ता आहिस्ता बेदखल किया जाता है। तो लोगों ने इसलिए चुना था कि आप उसका इलाज करेंगे। गवर्नर एड्रेस में तो उस रेजोल्यूशन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस क्लेम करती है, दावा करती है कि हमने जी 370 पर रेजोल्यूशन लाया, हालांकि उसमें उस 370 का कहीं जिक्र नहीं था। गवर्नर एड्रेस में उसकी भी जुर्रत नहीं की है, तज़किरा भी नहीं इस कैबिनेट ने कि उसका तज़किरा हो। हमें तो ताना देते हैं ये, आपने जी बीजेपी के साथ सरकार बनाई, मगर हमने बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बावजूद यहाँ पीडीपी का एजेंडा चला। जो एजेंडा ऑफ अलायंस बना वो भी पीडीपी का एजेंडा था। चाहे पत्थरबाजों को एमनेस्टी की बात हो, चाहे हुर्रियत वालों को लेटर लिखने की बात हो, चाहे डायलॉग की बात हो, चाहे ऑल पार्टी डेलीगेशन लाने की बात हो, चाहे सीज फायर की बात हो। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर कविंद्र गुप्ता ने महबूबा मुफ्ती के बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती बेबुनियाद बयानात देती रहती है, लेकिन वो ये नहीं समझते कि कौमी शारा या दीगर तरक्याती मंसूबे अवामी सहूलत के लिए बन रहे हैं, जिनका फ़ायदा वो खुद भी उठाती होंगी। कविंद्र गुप्ता ने मजीद कहा कि वो दिन गए जब ऐसे रहनुमा कश्मीरी अवाम को भड़काने की कोशिश करते थे और लोग उनकी बातों में आ जाते थे। आज उनकी सियासी ज़मीन खिसक चुकी है और अवाम अब ऐसे बयानात से गुमराह नहीं होगी। डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता मेरे साथ मौजूद हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि ज़मीनें जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस को हाईवेज़ के लिए जो है और प्रोजेक्ट्स के लिए दे दी गई हैं, जबकि बुलडोज़र जो हैं वो कश्मीर के लोग फेस कर रहे हैं और उनकी हालत रोहिंग्या जैसी बन जाएगी। देखिए किस प्रकार की बातें, हाईवेज़ किसके लिए हैं? लोगों के लिए हैं। क्या महबूबा मुफ्ती हाईवेज़ पर नहीं चलती हैं? सिक्योरिटी के कारण से ही आज जम्मू कश्मीर बचा हुआ है। आप लोगों ने पहल की होती है, आप लोगों के जिस प्रकार के इरादे हैं, आप तो पाकिस्तान के साथ मिलाना चाहते हो उसको। ऐसा नहीं होता। सिक्योरिटी फोर्सेस जो भी जम्मू कश्मीर के लिए जिन्होंने किया है, आपके साथ क्यों सिक्योरिटी फोर्सेस रहती हैं? उसका कारण है कि आप उनके बिना चल ही नहीं सकते। सिक्योरिटी फोर्सेस का सम्मान करना चाहिए। जो कश्मीर आज जुड़ा है, अगर कन्याकुमारी से लेकर जहाँ तक हाईवेज़ का ही एक परिणाम है और सरकार की जो अच्छी सोच है, मुझे लगता है महबूबा मुफ्ती खाम खा कोई ना कोई इस प्रकार से लोगों को गुमराह करती रहती है। क्या लगता है आपको इस तरह के बयान दे के कश्मीर की जनता को वो क्या कहना चाहती हैं? देखिए इससे कुछ होने वाला नहीं है। वो ज़माने चले गए जब लोगों को भड़काया जाता था, लोगों को इस प्रकार से गुमराह किया जाता था। लोग समझते डेवलपमेंट के मुद्दे को लेकर के अगर कोई बात करें तो लोग इनका समर्थन भी करें। हर बार उल्टी बात करनी ये ठीक नहीं होता। तो कहीं ना कहीं हर दफ़ा जो है महबूबा मुफ्ती उल्टी बात करती हैं, वो सही नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस को अगर ज़मीन दी गई है, यदि हाईवेज़ को ज़मीन दी गई है, तो हाईवे का इस्तेमाल लोग करते हैं और ख़ुद महबूबा मुफ्ती करती हैं। ये कहना है फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता का। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायकों की बैठक, मुख्यमंत्री अब्दुल्ला के नेतृत्व में तैयार की गई रणनीति। जम्मू में बजट सत्र को लेकर कांग्रेस विधायकों की भी हुई बैठक, महत्वपूर्ण मुद्दों पर की गई चर्चा। कांग्रेस की बैठक के बाद विधायक इफ्तिखार अहमद का बयान, असेंबली सेशन में स्टेटहुड समेत सभी अहम मुद्दों को उठाएगी कांग्रेस। जम्मू में मुख्यमंत्री आवास में कांग्रेस और अन्य समर्थक दलों की हुई बैठक, स्टेटहुड बजट समेत कई मुद्दों पर चर्चा। गुलमर्ग में पर्यटन से जुड़े लोगों को जम्मू कश्मीर के बजट से काफी उम्मीदें, कहा उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले पर्यटन उद्योग के लिए अच्छा होगा बजट। पुलवामा में पीडीपी के वरिष्ठ नेता वहीदुर रहमान पारा का बयान, कहा शराब पर प्रतिबंध के लिए वो आवाज उठाते रहेंगे, दिहाड़ी मजदूरों के हित के लिए भी प्रतिबद्ध। पुलवामा में विधानसभा सदस्य गुलाम मोहिउद्दीन मीर की बजट से उम्मीदें, कहा प्रदेश के निर्माण और विकास के लिए होगा ये बजट। पुंछ में आतंकियों की 4 संपत्तियां की गई कुर्क की गई संपत्तियों में 28 लाख रुपए की कीमत, 14.8 कनाल भूमि भी शामिल। कठुआ में बिलावर में 3 हथियारबंद आतंकियों को देखे जाने की खबर, सेना और पुलिस का सर्च अभियान जारी।
श्रीनगर के खानमो में युवक मुदस्सर रशीद ने सोशल मीडिया के जरिए बदली अपनी किस्मत। लकड़ी के टुकड़ों को कई खूबसूरत चीजों में बदलकर वीडियो किया शेयर। अब खरीद रहे हैं लोग। विंटर खेलो इंडिया गेम्स के 5वें संस्करण का होगा आयोजन। 9 मार्च से 12 मार्च तक गुलमर्ग में किया जाएगा आयोजित। हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने न्यूज 18 से की बातचीत। कहा, हिमाचल की राजनीति में परिवर्तन हुआ। प्रदेश में बढ़ रही बेरोजगारी और नशे के मामले। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, मैं मानता हूं हिमाचल में आर्थिक संकट, हिमाचल में फैसले जल्दबाजी में लिए जा रहे, हिमाचल में सरकार बहुत कैजुअल है। मंदिरों से पैसे लेने के मामले में सियासत गरमाई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंदिर के चढ़ावे के सहारे प्रदेश की कांग्रेस सरकार चलने की कही बात। तो शिक्षा मंत्री राजेश धर्म ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। अवामी इत्तेहाद पार्टी के रुकने असेंबली शेख खुर्शीद ने एलजी के खिताब के दौरान वॉकआउट किया। खुर्शीद ने कहा कि रियासत की बहाली का वादा पूरा नहीं किया गया है और वो 370 और 35A की बहाली भी चाहते हैं। उन्होंने सोपोर के ट्रक ड्राइवर और कठुआ के मखनदीन की मौत का मामला भी उठाया। जी की स्पीच शुरू हुई तो आप सिर्फ अकेले ऐसे लेजिस्लेटर थे जिन्होंने बाइकआउट किया। हमें ये समझाइए कि बाइकआउट आखिर आपने क्यों किया? देखिए, इसमें 2 रीजंस हैं। एक तो जो 370-35A और खासकर जो स्टेटहुड का वादा मरकजी सरकार ने, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया और जिसका पिछले खुतबे में 4 नवंबर के एड्रेस में एलजी साहब ने भी जिसकी कमिटमेंट और गारंटी दी थी, लेकिन वो जो है वो अभी तक जो है वो वादा पूरा नहीं हुआ। और साथ ही साथ जो सिविलियन किलिंग्स हुई यहाँ पे, जो कुटवा में मखनदीन की डेथ हुई और साथ ही साथ जो वसीम की किलिंग हुई, उस सिलसिले में हमने एहतजाज दर्ज किया कि उसमें जो है फेयर जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। स्टेटहुड रेस्टोरेशन की बात कही गई लेकिन अभी तक रिस्टोर नहीं हुआ। कब रिस्टोर होगा? तब तक जो यहाँ पे जो है जो नुकसान हमें उठाना पड़ रहा है, जो जवाबदेही नहीं है यहाँ पे महकमा जात को, तब तक लोगों का नुकसान जो है हो रहा है। हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द जो है स्टेटहुड बहाल हो। और साथ ही साथ जो वसीम और मखनदीन की जो डेथ हुई उस सिलसिले में हमने अपना जो है प्रोटेस्ट किया। लेकिन बीजेपी ये कहती है कि 370 जो धारा 370 वो एक हिस्ट्री बन चुकी है और इस पर कोई बात नहीं। उनके नजदीक हिस्ट्री बनी है, हमारे नजदीक हिस्ट्री नहीं बनी है। सरकार ने यहाँ से जो है हमने एक रेजोल्यूशन जो है सबमिट किया और इससे पहले भी एक रेजोल्यूशन जो है वो पास भी हुआ है। उमर अब्दुल्ला साहब से अभी हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि रेजोल्यूशन तो हमने पहले ही सेशन में लाया है, अब दोबारा से कैसे? चलिए उसी रेजोल्यूशन की बात कर दीजिए। अगर आप बीजेपी कहती है कि ये एक हिस्ट्री बनी है तो वो रेजोल्यूशन क्यों पास हुआ? वो रेजोल्यूशन तो यहाँ पास हुआ और साथ ही साथ जो है वो 370 और 35A हमें किसी दूसरे मुल्क ने नहीं दिया था, इस मुल्क के आईन ने हमें दिया था, वो इस मुल्क की गारंटी थी। जी, क्या आपने इंजीनियर रशीद की रिहाई की भी मांग किया? देखिए, हमने सिर्फ इंजीनियर रशीद साहब की रिहाई की मांग नहीं की है बल्कि सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई की मांग की है। जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जिसमें कुछ वकला हजरात हैं, जिसमें जर्नलिस्ट साहिबान हैं और साथ ही साथ जो कुछ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कि एक हफ्ता कबल ही वकार भट्टी साहब के ऊपर जो है ये PSA लगाया गया। हम चाहते हैं कि PSA सिस्टम, UAPA सिस्टम ये बंद होना चाहिए और पॉलिटिकल आवाज जो यहाँ दबाने की कोशिश की जा रही है, ये इस पर रोक लगनी चाहिए। के रुकने असेंबली वहीदुर रहमान परा ने कहा कि वो मायूस है। एलजी के खिताब में कुछ खास बात नहीं थी। आर्टिकल 370 पर बात हुई और न रियासत का दर्जा बहाल करने को लेकर कुछ कहा गया। लोगों ने वोट डाले जम्मू कश्मीर में। एक तवील मुद्दत के बाद इलेक्शन हुए और काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थे। सबसे बड़ा जो मसला यहाँ पर है पॉलिटिकली वो 370 का है। तो आई थिंक देयर वाज नो मेंशन ऑफ आर्टिकल 370, देयर वाज नो मेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, देयर वाज नो मेंशन ऑफ वेरिफिकेशन, ड्रॉपिंग द केसेस ऑफ यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, शिफ्टिंग द प्रिजनर्स फ्रॉम आउटसाइड टू लोकल जेल्स। तो जो बेसिक पॉलिटिकल इशूज़ हैं पिछले 5 साल में भी हमने जो गवर्नर साहब के एड्रेस देखे तो इट वाज सिमिलर सिंस देयर इज अ पॉपुलर गवर्नमेंट। तो हमें लगा कि पॉलिटिकल इश्यूज़ पे भी बात होगी। अनफॉर्चुनेटली वो इसमें ड्रॉप्ड आउट है। आने वाले सेशन में हमारी उम्मीद है कि जो ही वो मुद्दे उठेंगे तो उसके साथ साथ उन पर प्रोग्रेस होगी। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है कि 370 का जो रेजोल्यूशन है उस पर बात नहीं थी, उसका मेंशन नहीं हुआ। स्टेटहुड का मेंशन हुआ। उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात हुई, जो नौजवानों के खिलाफ केसेस है जम्मू कश्मीर में, उसका मेंशन नहीं हुआ। जो वेरिफिकेशन का प्रॉब्लम, जो मुलाजमों की टर्मिनेशंस है या जो इस वक्त यहाँ पे लैंड के इशूज़ है, उन सारे कोर इशूज़ पे ज़्यादा कोई मेंशन नहीं। तो यू आर डिसअपॉइंटेड? डिसअपॉइंटमेंट ही है। इतने तवील मुद्दे के बाद हमें एक्सपेक्ट था कि पॉलिटिकल इश्यूज पे बात होगी, बट वी फाउंड नो मेंशन ऑफ। आर यू गोइंग टू रेज देम? वी विल रेज देम डेफिनेटली।
तो वहीं खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। गोल्डी मसाला सरकारी योजनाओं के लिए मंदिरों से पैसा नहीं लेगी हिमाचल सरकार, बीजेपी कर रही दुष्प्रचार। मंडी में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का बयान। बीजेपी नेता रमेश धवाला ने असली बीजेपी के नाम से नई पार्टी के गठन का किया ऐलान। बोले 10 साल से बीजेपी के निष्ठावान कार्यकर्ता रहा हूं, अब असली बीजेपी के जरिए नया पैरेलल संगठन बनाऊंगा। बद्दी पुलिस अवैध खनन को लेकर सख्त, अवैध खनन करते एक जेसीबी और टिप्पर जब्त, पुलिस ने माइनिंग एक्ट एनजीटी के तहत की कार्रवाई। चंबा भरमौर मार्ग पर लहाल के पास भारी भूस्खलन, देखते देखते पहाड़ी से गिरी चट्टान, कैमरे में कैद हुआ भूस्खलन का भयंकर नजारा। मंडी की 3 बेटियां स्पेशल ओलंपिक में भाग लेने जाएंगी इटली। 8 मार्च से 15 मार्च तक इटली में होगा स्पेशल ओलंपिक विंटर गेम्स का आयोजन। जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायकों की बैठक, मुख्यमंत्री अब्दुल्ला के नेतृत्व में तैयार की गई रणनीति। जम्मू में बजट सत्र को लेकर कांग्रेस विधायकों की भी हुई बैठक, महत्वपूर्ण मुद्दों पर की गई चर्चा। कांग्रेस की बैठक के बाद विधायक इफ्तिखार अहमद का बयान, असेंबली सेशन में स्टेटहुड समेत सभी अहम मुद्दों को उठाएगी कांग्रेस। जम्मू में मुख्यमंत्री आवास में कांग्रेस और अन्य समर्थक दलों की हुई बैठक, स्टेटहुड बजट समेत कई मुद्दों पर चर्चा। गुलमर्ग में पर्यटन से जुड़े लोगों को जम्मू कश्मीर के बजट से काफी उम्मीदें, कहा उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले पर्यटन उद्योग के लिए अच्छा होगा बजट। पुलवामा में पीडीपी के वरिष्ठ नेता वहीदुर रहमान पारा का बयान, कहा शराब पर प्रतिबंध के लिए वो आवाज उठाते रहेंगे, दिहाड़ी मजदूरों के हित के लिए भी प्रतिबद्ध। पुलवामा में विधानसभा सदस्य गुलाम मोहिउद्दीन मीर की बजट से उम्मीदें, कहा प्रदेश के निर्माण और विकास के लिए होगा ये बजट। पुंछ में आतंकियों की 4 संपत्तियां की गई कुर्क की गई संपत्तियों में 28 लाख रुपए की कीमत, 14.8 कनाल भूमि भी शामिल। कठुआ में बिलावर में 3 हथियारबंद आतंकियों को देखे जाने की खबर, सेना और पुलिस का सर्च अभियान जारी। श्रीनगर के खानमो में युवक मुदस्सर रशीद ने सोशल मीडिया के जरिए बदली अपनी किस्मत, लकड़ी के टुकड़ों को कई खूबसूरत चीजों में बदलकर वीडियो किया शेयर, अब खरीद रहे हैं लोग। विंटर खेलो इंडिया गेम्स के 5वें संस्करण का होगा आयोजन, 9 मार्च से 12 मार्च तक गुलमर्ग में किया जाएगा आयोजित। हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने न्यूज 18 से की बातचीत, कहा हिमाचल की राजनीति में परिवर्तन हुआ, प्रदेश में बढ़ रही बेरोजगारी और नशे के मामले। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, मैं मानता हूं हिमाचल में आर्थिक संकट, हिमाचल में फैसले जल्दबाजी में लिए जा रहे, हिमाचल में सरकार बहुत कैजुअल है। मंदिरों से पैसे लेने के मामले में सियासत गरमाई, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंदिर के चढ़ावे के सहारे प्रदेश की कांग्रेस सरकार चलने की कही बात, तो शिक्षा मंत्री ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। कांग्रेस के रुकन असेंबली एडवोकेट इरफान हफीज लोन ने भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मुज़ाकरात की वकालत की है। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही मसाइल को खुश असलूबी से हल कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस रियासत की जल्द बहाली की हिमायत करती है। जिसे हम हिंदी में कहते संघ ढांचा, वो रूह है हिंदुस्तान के आईन की, और इस सरकार ने, बीजेपी के लोगों ने उस आईन की धज्जियां उड़ाई जब इन्होंने हमारे साथ हमारा स्टेट, हमारा लद्दाख हमसे अलग कर दिया, और हम समझते हैं कि वो ब्रेजन वायलेशन है जो संविधान की। हम जिस तरीके से इन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम को, जो एक हिस्टोरिकल एक स्टेट थी, उसे यूटी बनाया और लद्दाख को अलग किया, हम समझते हैं हमारे साथ अन्याय था। अभी तक इतिहास में हमने कभी नहीं देखा है कि एक स्टेट को यूटी बनते हुए, हमने देखा है एक यूटी को स्टेट बनते हुए। और हम समझते हैं गांधी जी का देश है, और गांधी जी के देश में बातचीत से वार्ता होनी चाहिए, हर समस्या का समाधान बातचीत से होना चाहिए। और हम समझते हैं कि जो भी हमारे मसले मसाइल है, जो संविधान के धारे में संभव है, उसके लिए पहल होनी चाहिए। और जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेस्टोर इट एट द अर्लीस्ट, और हम समझते हैं उसके बाद ये नहीं कर रहे, तो ये हम समझते हैं बदकिस्मती है, और ये जो है लोगों के साथ नाइंसाफी है। और उसके साथ साथ डिस्पाइट प्रधानमंत्री जी ने कई दफा कहा कि हम इसको रेस्टोर करेंगे, लेकिन नहीं किया। अब तक हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या वजूहात है उनके सामने। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बारे में भी उमर अब्दुल्ला ने कहा कि
एक वक्त आया था कि दोनों पार्टियां क्लोज हो गई थी सेटल करने। उन्होंने ये कहा, मैंने भी सुना, इफ आई एम राइट, उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी ने पहल की थी, कहा था पड़ोसी नहीं दोस्त बदल सकते, पड़ोसी नहीं। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह जी ने भी उस लेगेसी को, बातचीत जो है उसको आगे बढ़ाया। तो मनमोहन सिंह जी भी और वाजपेयी जी दोनों ने हमेशा जो भी कोई भी मामला हो, जो इंस्टीट्यूशन है वार्ता का, डायलॉग का, उसे स्ट्रेंथन। बीजेपी कहती है कोई डायलॉग नहीं। हम समझते हैं ब्लड स्पीक्स ओनली वन लैंग्वेज, दैट्स ब्लड, एंड ब्लड स्पीक्स ओनली वन लैंग्वेज, दैट्स डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। वी बिलीव डायलॉग लीड्स टू रेजोल्यूशन। अगर युद्ध भी होते हैं, लास्ट पे डायलॉग टेबल से ही हर समस्या का हल होता है, और हम समझते हैं कि गांधी जी का देश है, यहां पर हल होना चाहिए। और हम समझते हैं, अभी आपने देखा अत्याचार हो रहा है, हमारे सोपोर में एक ट्रक ड्राइवर, मानवता का कत्ल है, किस तरीके से उसकी हत्या की। वो आप और मेरी तरह एक निर्दोष शहरी था, एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते एक्टिविस्ट है भट्टी साहब, उनको जेल में डाल दिया, वकार भट्टी साहब को। हम समझते ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गांधी जी का देश है, बात करने का मौका दीजिए। धारा 370 पर क्या स्टैंड लेती है कांग्रेस का? स्टैंड तो पता है, देखिए हमने, लेकिन आप तो कांग्रेस में हम समझते हैं कि जो भी संविधान के दायरे में संभव होगा, हमारा स्टेट, हमारा लद्दाख, हमारा जो जमीन, हमारी नौकरी, ताचे कशिट पटी वना दैत्य के बजाय वर्ल्ड। शुक्रिया। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने यह भी दावा किया कि जम्मू कश्मीर हुकूमत अच्छा काम कर रही है और रियासत जल्द ही बहाल हो जाएगी। उन्होंने अपोजिशन पार्टियों को बेसमत करार देते हुए उन पर तनकीद की। मेरे साथ इस वक्त है सुरेंद्र चौधरी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर। सर, एक मिनट, एक ही सवाल है। जो आज पेश किया गया एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से जो स्पीच दी गई, उसको क्या कहेंगे? देखिए, जो उन्होंने गवर्नर एड्रेस था, जो एक रवायत है, जब भी कोई हाउस लगता है तो एलजी, अब क्योंकि अब एलजी हैं, ये यूटी है, एलजी है, इसलिए उन्होंने एड्रेस किया। अगर स्टेट होती तो गवर्नर साहब ने करना था। ये एक रवायती होता है और वही रवायत के मुताबिक उन्होंने एड्रेस किया है। अब उस पर जो एड्रेस उन्होंने किया, ऑनरेबल एमएलए उस पर डिस्कशन करेंगे और सरकार उस चीज़ का जवाब देगी। तो लिहाजा ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी की यही खूबसूरती है कि अगर कोई हम बात रखते हैं तो ऑनरेबल एमएलए को पूरा हक है उस पर डिबेट करने का। उमर साहब बातचीत की बात कर रहे थे, जब रेफरेंस चल रहा था औपचारिक रेफरेंस, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए? देखिए, उमर साहब ने जो कहा वो आपने भी सुना, हमने भी सुना। तो जो उमर साहब ने कहा वो आपके सामने है, ऑन रिकॉर्ड है। तो जो उन्होंने कहा उस पर हमारी भी हामी है, हम उनके साथ हैं, पार्टी उनके साथ है, हम लेजिस्लेटर उनके साथ हैं, ये सरकार उनके साथ। अपोजिशन कहीं ना कहीं ज्यादा मुतासिर नहीं है, अपोजिशन ये कह रही है कि कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। अपोजिशन का काम है बोलना, उन्होंने अपना बोलना, हमने अपना बोलना। तो लिहाजा अब आगे हाउस चलेगा, रोज आप कवर करेंगे। थैंक यू। तो देखिए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी कह रहे हैं कि अपोजिशन के पास कोई मुद्दा नहीं है, और जो उमर अब्दुल्ला ने हिंदुस्तान पाकिस्तान की बातचीत की बात की है, उस पर उन्होंने कहा कि जो उमर अब्दुल्ला का स्टैंड है वही पार्टी का स्टैंड है और गवर्नमेंट का भी यही स्टैंड है। कैमरामैन चांद के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि स्टेटहुड पर जो भी बात होगी वो असेंबली के अंदर होगी। उमर ने कहा कि एलजी के खिताब में दर्ज तरजीहात हुकूमत की तरजीहात है और मरकज के साथ मिलकर उनको पूरा करना है। उमर ने कहा कि दफा 370 पर उन्हें जो करना था वो उन्होंने पहले सेशन में किया और वो करारदाद अभी भी कायम है। सीएम ने कहा कि अब इस पर बार बार बात करने की क्या जरूरत है। स्टेटहुड की बात कर रहा हूँ। अब अभी कोई बात नहीं है, हाउस के अंदर बात होगी ना। अब हाउस के बाहर कहाँ बात होगी, हाउस के अंदर बात करेंगे। ये तरीका नहीं है ना, हम हाउस के बाहर बात नहीं करते। काम कल से शुरू हो जाएगा। आज तो सिर्फ एलजी साहब का खुतबा था और ओबिचुअरी रेफरेंसेस दोनों हो गए हैं। कल से एलजी साहब के खुतबे पे बहस शुरू होगी। तमाम ये जो आप सवाल कर रहे हो, ये सारी बातें जो है मुझे यकीन है कि ऑनरेबल मेंबर्स जो है वहां पे उठा लेंगे। हुकूमत को जो कहना होगा हम वहाँ डिबेट के दौरान कह देंगे। एलजी मनोज सिन्हा जी का जो आज का खुतबा था वो सरकार का खुतबा था, उसको किस तरह से आप लेते हैं? उस पर आप क्या कहेंगे कि आपकी जो प्रायोरिटीज हैं वो क्या क्या रहेंगी? आपको क्या लगता है ना आपके इस खुतबे में हमारा कोई रोल नहीं है। जब एलजी साहब खुतबा देते हैं तो हुकूमत की तरफ से देते हैं, तो ये तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज हैं, ये हमारा काम है, मिलके करना है हमने। सर, पीडीपी कह रही है कि धारा 370 पर कोई मेंशन नहीं हुआ है, आप लोगों ने उस पर भी बात की थी? हमने जितना उस पर करना था पहले सेशन में किया ना। हमारा रेजोल्यूशन आज भी कायम है, हाउस ने पास किया। यही लोग हैं पीडीपी और बाकी जिन्होंने उसको पास करने में मदद की। वो रेजोल्यूशन आज भी कायम है, बड़ी बात है। आप लोग तो शायद सोच रहे थे कि जो भी रेजोल्यूशन यहाँ जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को लेके होगा वो रिजेक्ट होगा, लेकिन वो रेजोल्यूशन रिजेक्ट हुआ नहीं, आज भी कायम है। तो इसमें और बात करने की जरूरत क्या है? ये थोड़ी ना कि हम बार बार यही बात करेंगे।
हमने जो करना था पहले सेशन में कर दिया। अगर हमने वो रेजोल्यूशन नहीं लाया होता तब चलिए हम इस पे बहस करते, लेकिन रेजोल्यूशन लाया हमने, हाउस ने पास किया, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से पास हुआ। अब और क्या बात करनी है। हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा ने पाक भारत मुज़ाकरात की बहाली के मुतालबे पर उमर अब्दुल्ला को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी और मुज़ाकरात कभी साथ नहीं चल सकते और वज़ीर आला को इसे समझना चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासत का दर्जा बहाल करने का इख्तियार पार्लियामेंट को है, न कि जम्मू कश्मीर असेंबली को। उन्होंने उमर के उस इल्ज़ाम को भी मुस्तरद किया कि बीजेपी ने शैडो काबिना बनाकर हुकूमत के मामलात में मुदाखलत की। दुख इस बात का होता है कि 4 बार से या 5 बार से जीता हुआ विधायक, उसे अभी ये भी नहीं पता कि इस असेंबली का डोमेन क्या है। किसी भी देश के साथ बात करना न करना ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का डोमेन होता है, ये भारत सरकार का डोमेन है। आपके कहने से बात न होगी ना होगी, आप अपना काम करें। मैं सिर्फ इतनी ही हिदायत दूंगा, आप अपना काम करें। भारत सरकार को कब बात करनी है उन्हें पता है। मुझे बताइए, स्टेटहुड से क्या पैसों की वर्षा होगी ऊपर से, या जमीन में पैसे उपजेंगे क्या? स्टेटहुड से क्या होगा आप ही पूछें, क्या होगा? स्टेटहुड से फंड कहीं से निकलेगी क्या? जो आपने वादे पूरे करने हैं वो वादे सिर्फ 1 सिलेंडर 1 साल देने के लिए 96 लाख हजार रुपए आपको देना है, तो स्टेटहुड से कहां से निकलेंगे? स्टेटहुड अनाउंस किया तो बारिश एकदम पैसों की आ गई, उमर अब्दुल्ला साहब को मिल गए। तो कहां आपको हर्डल क्रिएट कर रही है स्टेटहुड या यूटी जो आपने वादे किए थे? अगर मान लेते हैं कर लिए, तो उस वक्त कहां सोए थे आप या किसी नशे में थे? आपको उस वक्त पता नहीं था स्टेटहुड नहीं है, तो मैं वादे क्यों करूं? आपने तो ये तक कहा था कि मैं सेक्रेटेरिएट में तब तक नहीं जाऊंगा जब तक यूनियन टेरिटरी है। बीजेपी के साबिक एमएलसी गिरधारी लाल रायना ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की हुकूमती खिताब पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडित बरादरी मायूसी का शिकार है क्योंकि हुकूमत उनकी वापसी के लिए संजीदा नहीं। गिरधारी लाल रायना के मुताबिक उमर अब्दुल्ला हुकूमत को बेघर कश्मीरी पंडितों से बातचीत करनी चाहिए थी, लेकिन अब तक सिर्फ यकीन दहानियां ही दी जा रही हैं। जिला पुलवामा के लीलाहारा काकपुरा इलाके में एक टिपर रेत लोड करने के दौरान दरियाए जहलम में गिर गया। टिपर का ड्राइवर इस हादसे में बाल बाल बच गया और लीलाहारा काकपुरा में ये वाकया उस वक्त पेश आया जब दरियाए जहलम के किनारे पर रेत लोडिंग के लिए ये गाड़ी आई हुई थी और इस दौरान फिसल कर दरिया में गिर गई। गाड़ी का काफी हिस्सा दरिया में डूब गया, ताहम इस हादसे में ड्राइवर बच निकलने में कामयाब हुआ। वस्ती कश्मीर के गांदरबल जिले के तुलमुला इलाके में बाबा हैदर दरगाह के करीब एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें एक शख्स की मौत वाक़ई हुई है जबकि दूसरा शदीद जख्मी हुआ है। इतलात के मुताबिक एक नामालूम ब्रीजा कार ने 2 राहगीरों को टक्कर मार दी, जिसमें अब्दुल रशीद डार जा बहक हो गए जबकि अब्दुल क़य्यूम शेख जेर इलाज है। पुलिस ने मामले की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। जम्मू राजौरी पुंछ हाईवे पर राजौरी जिले के नौशहरा इलाके में बगनूती में पेश आने वाले सड़क हादसे की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। इसमें देखा जा सकता है कि एक तेज रफ्तार एक्सयूवी गाड़ी बेकाबू होकर एक टेम्पो ट्रैवलर से टकरा गई और इस हादसे में 2 अफराद जख्मी हुए। दहशतगर्दी के खिलाफ एक अहम कार्रवाई में शोपियां पुलिस ने जिले के जैनपुरा इलाके में एक दहशतगर्द साथी इलियास अहमद की जायदाद अटैच कर दी और पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम मुतादिद मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस था और वो इलाके में सरगर्म दहशतगर्दों को लॉजिस्टिक मदद फराहम करता था। उनकी जायदाद अटैचमेंट दहशतगर्दी की मदद करने वालों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के हिस्से के तौर पर सामने आई है। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी का ताज़ा सिलसिला शुरू हुआ और मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। इसकी वजह से दिन के दर्जे हरारत में कमी आई है और सर्दी की लहर ने पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लिया। महकमा मौसमियात ने पहले ही 4 मार्च तक मौसम की ऐसी सूरत हाल की पेशनगोई कर दी है। ताहम नवेगा टनल के करीब बारिश और ताज़ा बर्फबारी के बावजूद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा 2 तरफा ट्रैफिक के लिए खुली है।
महकमे मौसमियात ने जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशनगोई की है। महकमे ने खबरदार किया कि पहाड़ी इलाकों में बर्फानी तोदा गिरने, लैंडस्लाइडिंग और मिट्टी के तोदे गिरने का खदशा है और लोगों को इन इलाकों में एहतियात बरतनी चाहिए। MET के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने कहा कि हालिया बर्फबारी और बारिश की वजह से बारिश की कमी का मसला काफी हद तक हल हो गया है। तो वहीं वादी कश्मीर के सेबों के मरकज कहलाने वाले शोपियां जिले में एक बार फिर शदीद बर्फबारी का आगाज हुआ। मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। माहिरीन के मुताबिक बर्फबारी गर्मियों में पानी के ज़खायर को भरने में अहम किरदार अदा करती है, जो बागात और ज़रई ज़मीनों के लिए निहायत ज़रूरी है। शोपियां में 99% आबादी सेब की सनत से वाबस्ता है। यहाँ सालाना 4 लाख मीट्रिक टन सेब पैदा होते हैं। महकमे मौसमियात की ठीक पेशगोई के बाद बलाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में एक बार फिर जमकर बर्फबारी शुरू हो चुकी है। एक तरफ ये बर्फबारी खेत खलिहानों के लिए मुफीद मानी जाती है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए अब सर्दियों में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है और उसके साथ साथ पिछले कई दिनों से जो नदी नाले सूखे नजर आ रहे हैं, अब उनमें पानी की सतह बढ़ चुकी है, जो आम किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुपियान। राजौरी जिले में कल रात से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है और जिला राजौरी के मैदानी इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई। तवील ट्रैफिक जाम ने कोतरंका और दीगर करीबी इलाकों का सफर करने वाले बहुत से सरकारी मुलाजमीन और असातिज़ा को बुरी तरह मुतासर किया। जिले के कई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग की खबरें हैं। तो वहीं शदीद बर्फबारी और बारिश ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हरकत में खलल डाला। हुकाम ने मुसाफिरों को खराब मौसमी हालात के दौरान गाड़ी चलाते हुए एहतियात बरतने का मशवरा दिया है। बर्फबारी और बारिश के नतीजे में सड़क की हालत फिसलन और मुतादिद लैंडस्लाइडिंग और हाईवे पर पत्थर गिरने के वाकयात पेश आए हैं। ट्रैफिक की नकलो हरकत बुरी तरह मुतासर हुई, ताहम शाहराह पर ट्रैफिक चल रहा है। हुकाम ने मलबा हटाने और हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी के लिए अमले और मशीनरी तैनात कर दी है। मुसाफिरों को मशवरा दिया जाता है कि वो अपने सफ़र पर जाने से पहले ताज़ा तरीन ट्रैफिक अपडेट्स को चेक करें और ट्रैफिक हुकाम की हिदायत पर अमल करें। और मशहूर सयाहती मकाम सोनमर्ग में ताज़ा बर्फबारी हुई। ताज़ा बर्फबारी से सयाह काफ़ी खुश है। सोनमर्ग में जारी बर्फबारी की वजह से दर्जे हरारत में नुमाया कमी देखने को मिल रही है। ताहम शदीद सर्दी के बावजूद सयाहों का जोश खरोश मुसलसल बरकरार है। Weather is fully packed here in Sonmarg. Again, heavy snowfall. Temperature here is -1 and it's heavily snowfall here and we are enjoying. गुलमर्ग 9 से 12 मार्च तक 5वें एडिशन खेलो इंडिया सरमाई खेलों के दूसरे मरहले की मेजबानी करने के लिए तैयार है। नाकाफी बर्फ की वजह से इस इवेंट को पहले मुलतवी कर दिया गया था। टाउन हॉल टंगमर्ग में सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल और डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला की सदारत में मीटिंग हुई, जिसमें इंतजामात का जायजा लिया गया। पुलिस के अलावा तमाम अफसरान मौजूद थे। मुल्क भर से 700 से ज्यादा एथलीट्स हिस्सा लेंगे। पिछले हफ्ते स्नो अवेलेबिलिटी नहीं थी तो इसको पोस्टपोन किया गया था। आपने देखा होगा पिछले एक हफ्ते से काफ़ी हैवी स्नोफॉल हो रही है, जो हमारे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण है। तो अब एडिक्वेट स्नो अवेलेबल है हमारे यहाँ कंगडूरी में, जहाँ पे फील्ड ऑफ प्ले रहता है। तो उसी के लिए आपको पता होगा कि नाउ हमारा जो रिवाइज डेट्स है वो 8 से 12 तक है। 8 तारीख को हमारे एथलीट्स आएंगे, 9 से गेम शुरू होंगे। तो उसी के लिए आज यहाँ पे टाउन हॉल टंगमर्ग में CO साहब, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल, SSP रूरल ट्रैफिक, SDM टंगमर्ग और जितने भी डिस्ट्रिक्ट के आला अफसरान आए हुए हैं। तो हम यही कोशिश करें कि आने वाले 2-3 दिनों में जितनी भी मुकम्मल तैयारियां हैं वो कर दी जाएंगी। अगर ट्रैफिक के हवाले से बात करें तो एडिक्वेट डिप्लॉयमेंट रहेगी कि कोई भी टूरिस्ट को या हमारे एथलीट्स को कोई हैसल फ्री ट्रैवल रहे उनका। दूसरा, पावर अवेलेबिलिटी के रिगार्डिंग भी हमने मीटिंग की। पिछले हाल ही दिनों में काफ़ी हैवी स्नोफॉल के कारण हमारे 2-3 33 kV के लाइन डैमेज थे, जिसके कारण गुलमर्ग की पावर सप्लाई अफेक्टेड थी। तो उसमें ऑलरेडी AWE साहब की टीम काम कर रही है। प्लस अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कल परसों मौसम बदलेगा तो उस समय प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करेंगे कि फिर भी स्नोफॉल होने से ये फिर लाइन। काजीगुंड अपने 500 चश्मों के लिए मशहूर है। यहाँ काफ़ी आबी वसाइल मौजूद है। यही वजह है कि यहाँ महकमे जल शक्ति, फिशरीज और दीगर महकमों ने कई स्कीमों के जरिए लोगों को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की। ताहम मकामी लोगों ने मुतालबा किया कि आबी वसाइल और इन चश्मों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने आम लोगों के रोल को भी अहम करार दिया।
जनाब आपकी बात सच है कि 500 स्प्रिंग्स है और आपने खुद कहा कि ड्रॉट लाइक सिचुएशन अभी कुछ दिनों पहले हुई थी कि अल्लाह ताला ने हमें फिर से नवाजा इस नियामत से, अदरवाइज हम हर जगह पे देते थे कि ड्रॉट लाइक सिचुएशन है। हमारा ये है कि जो ये नेचुरल रिसोर्स से अल्लाह ताला जिसने हमें नवाजा है, हमने इनको पीक लेवल पे कभी प्रिजर्व नहीं किया है, चाहे गवर्नमेंट ने चाहे लोकल्स ने। अगर हम अपनी लोकल्स की बात कर रहे हैं तो हमने जो भी घरों में वेस्ट निकल रहा है हम सारा का सारा कूड़ा करकट इसमें डालते हैं, और एट द एंड जब ये प्रिजर्व नहीं होते हैं, जब ड्रॉट लाइक सिचुएशन होती है, फिर लोग चिल्ला के अल्लाह ताला से मांगते हैं कि हमें, जबकि हम खुद जो भी नियामतें हमें दी है इनका कभी भी प्रिजर्व नहीं करते हैं। हमारे घर में से जो भी वेस्ट निकलता है वो यहाँ से आते हैं, इसीलिए हम हर किसी से गुजारिश करते हैं अपने लोकेलिटी से, और जो भी यहाँ जिस मतलब जो भी नीचे लोकेलिटीज हैं जिनको यहाँ से पानी मिलता है अप टू वेसू जिनको पानी मिलता है, हम सब से गुजारिश करते हैं कि आप एक दिन निकाले, यहाँ तक आए, इसको साफ कर ले, इसमें जो भी कूड़ा करकट है वो निकाले, ताकि हमें जिंदगी भर ये पानी रहे, ये नियामत हम तक रहे। गवर्नमेंट तब तक कुछ भी नहीं है जब तक लोगों का साथ ना हो, लोगों से ही गवर्नमेंट है। लोग हमेशा यही कहते हैं कि आप हमें आपका ताउन चाहिए। हमें डीसी अनंतनाग साहब भी यहाँ आए, उन्होंने कहा तब तक कुछ नहीं हो सकता जब तक कि लोगों का ताउन ना हो। हम डीसी साहब को और एक बार कहते हैं आप आइए, आप देखिए कि कितना प्यारा चश्मा है, इसको डेवलपमेंट की जरूरत है। चाहे आप R&B को दीजिए, चाहे आप रूरल डेवलपमेंट को दीजिए, मेहरबानी करके इसको प्रिजर्व करिए। और मुझे लग रहा है तब आपकी जो वाटर क्राइसिस अगर कभी कभार आपको होती है, मुझे लग रहा है कि ये नाग आपको और ज्यादा वसाइल देगा और आपकी ये परेशानी हल हो जाए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। सरकारी योजनाओं के लिए मंदिरों से पैसा नहीं लेगी हिमाचल सरकार, बीजेपी कर रही दुष्प्रचार। मंडी में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का बयान। बीजेपी नेता रमेश धवाला ने असली बीजेपी के नाम से नई पार्टी के गठन का किया ऐलान। बोले 10 साल से बीजेपी के निष्ठावान कार्यकर्ता रहा हूं, अब असली बीजेपी के जरिए नया पैरेलल संगठन बनाऊंगा। बद्दी पुलिस अवैध खनन को लेकर सख्त, अवैध खनन करते एक जेसीबी और टिप्पर जब्त, पुलिस ने माइनिंग एक्ट एनजीटी के तहत की कार्रवाई। चंबा भरमौर मार्ग पर लहाल के पास भारी भूस्खलन, देखते देखते पहाड़ी से गिरी चट्टान, कैमरे में कैद हुआ भूस्खलन का भयंकर नजारा। मंडी की 3 बेटियां स्पेशल ओलंपिक में भाग लेने जाएंगी इटली, 8 ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। कौमी शाहरा 144A के साथ अहम बुनियादी ढांचे के मंसूबे की तामीर ने आज भंबर गली टनल के इफ्तिताही ब्लास्ट के साथ एक अहम संग मील हासिल किया। 1.1 किलोमीटर पर मुहित ये टनल कलाली राजौरी से बठाडोरियां पुंछ तक फैले हुए 16 किलोमीटर तवील प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा है। ये पहल राजौरी से पुंछ तक के मुश्किल इलाके में फौजी दस्तों और आम अवामी मुसाफिरों की नकलो हरकत के लिए एक मुतबादिल महूर के तौर पर काम करेगी। इफ्तिताही ब्लास्ट ब्रिगेडियर नीरज मदन, चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट संपारिक ने RO MORTH के साथ किया और इससे कबल टनल के मकाम पर पूजा की तकरीब भी मुनक्किद हुई। बड़ा ही मुबारक दिन है हम सब के लिए, और ख़ास करके पुंछ राजौरी के लोगों के लिए कि ये जो बड़ी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाली ये जो भंबर टनल है, इसका आज जो है लॉन्च सेरेमनी थी। वर्दी चीफ इंजीनियर जो हैं BRO संपर्क के, उन्होंने इसको जो है लॉन्च सेरेमनी को जो है सरंजाम दिया। इनके एजिस में ये पूरी प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया। 1.1 यानी 1100 मीटर इस टनल की जो है वो कुल लेंथ है, और अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो शॉर्टन होगा। पुंछ का और जम्मू के बीच का जो डिस्टेंस है 10 किलोमीटर ये शॉर्टन होगा। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है इस टनल की, और हम ये उम्मीद लगाते हैं कि ये संपर्क जो हमारी ये जो BRO की एजेंसी है, ये जल्दी से जल्दी जो है इस टनल का जो है काम वो ख़त्म करेगी। और जैसा कि चीफ इंजीनियर साहब ने इंस्ट्रक्शंस भी दी हैं कि वो सेफ्टी एस्पेक्ट को जो है वो उस पर स्पेशल फोकस रहेगा, उस पर एम्फेसिस रहेगा। Enhance the connectivity in JNK, especially in the areas of Akhnur Punch. The road stretch of approximately 16 kilometers, which is from Kalali, district Rajouri, to Batadoria in district Punch, part of Akhnur Punch 144 Alpha, which includes the Bimbar Gully tunnel, which is 1.1 kilometer long. We have 4 tunnels which will be
effective on National Highway 144 Alpha from the stretch between Aknoor to Punch. The other 3 tunnels, Kandi, Sungal and Naushera, are at a very advanced stage of construction and they are likely to be completed in coming. श्रीनगर पुलिस ने मंशियात के खिलाफ कार्रवाई को मजीद सख्त कर दिया। एसपी सिटी साउथ शबीर खान के मुताबिक 24 फरवरी को शहीदगंज में खड़ी एक मुश्तबा गाड़ी की इतला मिली जिसके मालिक मंजूर अहमद भट्ट थे, मगर तफ्तीश में मालूम हुआ कि ये गाड़ी मोहम्मद शफी ने इस्तेमाल की थी। उसने अपने साथियों जहूर और रऊफ के साथ मिलकर साजिश के तहत मंजूर की गाड़ी में मंशियात रखी थी। मजीद तहक़ीक़ात में छोटा बाजार की श्री मारुति कोरियर सर्विस से भी मंशियात बरामद हुई, जहां हिलाल अहमद भट्ट के जरिए दिल्ली से जैद अहमद नामी शख्स ने मंशियात भेजा था। पुलिस ने नेटवर्क को बेनकाब करते हुए मजीद कार्रवाई का इंदिया दिया है। जब गाड़ी के ओनर को वहां पे मौके पे बुलाया जाता है तो उससे कुछ क्वेश्चनिंग की जाती है और फिर उसी से उस गाड़ी को खुलवाया जाता है। जब गाड़ी को खुलवाया जाता है तो गाड़ी की डिक्की में से 452 ग्राम्स चरस जो है वो बरामद की जाती है और लीगल कार्रवाई करते हुए एफआईआर नंबर 5/2025 अंडर सेक्शन 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट पुलिस स्टेशन शहीदगंज में लॉज होती। जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी कानकनी के खिलाफ आवाज़ें मुसलसल बुलंद हो रही है। वहीं माइनिंग से जुड़े अफराद की बाज़ाबातकारी का भी मुतालबा किया जा रहा है। सीनियर सियासतदान आसिफ नबी डार ने उन अफराद के रोजगार और बहाली के लिए एक जामिया पॉलिसी बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी कानकनी से कुदरती वसाइल को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। इलीगल माइनिंग जैसे हम सब जानते हैं कि बहुत टाइम से कश्मीर में चल रही है, जिससे हमें बहुत सारे नुकसानात का भी सामना करना पड़ रहा है। इसमें सबसे बड़ा जो कंसर्न है, ये जो हमारे टिपर ड्राइवर्स है यही इसमें इन्वॉल्व भी होती है और इनको भी अरेस्ट भी जाना पड़ता है और ये लोग रॉयल्टी भी भरते हैं। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है, बराई मेहरबानी ये लोग रॉयल्टी भी देंगे और अगर इनको कुछ ज़रिया हम देंगे जिससे ये जो माइनिंग है ये लीगल तरीके से करें, बराई मेहरबानी इन पे थोड़ा नज़रसानी करें, क्योंकि ये लोग दिन ब दिन इनका तादाद भी बढ़ रहे हैं और हमें नुकसानात भी देखना पड़ रहा है। जैसे कि हमारा इरिगेशन सिस्टम ख़त्म हो गया, हमारा बागवान का सिस्टम ख़त्म हो गया, हमारे अब एप्पल ऑर्चर्ड्स है जिनको ये जेहलम से वो छोटे छोटे कैनाल से पानी जा रहा था, वो सब ख़त्म हो गए। डोडा ज़िले के भलीसा इलाके में एक चीते ने हमला करके तकरीबन 10 से 11 भेड़ों को हलाक कर दिया। मुतासरा शख्स ने बरादरी से मदद और हुकूमत से मुआवजे की अपील की। लोगों ने महकमा वाइल्ड लाइफ से मसले को फौरी हल करने की अपील की और हुकूमत से मुतासरा शख्स को फौरी मदद फराहम करने की मांग भी की। ये हुआ सुबह, हम रात को 9 बजे के बीच 9 बजे हमने इनमें वो पत्ते वत्ते लगाए थे, तो सुबह हम आए कोई 7-8 बजे, फिर से वो पत्ते लगाने तो इधर देखा तो इधर ये सारे डेड ये थे। किसने मारे हैं ये शेर ने मारे हैं। शेर ने मारे हैं। त्राल के दोदमर्ग इलाके में मौजूद खेल का मैदान खस्ता हाली का शिकार है और लोगों ने बताया कि हाल ही में ये मैदान तामीर किया गया, लेकिन अब ये खस्ता हाली का शिकार है। लोगों ने बताया कि अगरचे मनरेगा के तहत मुख्तलिफ इलाकों में खेल के मैदान तामीर किए गए, ताहम इस इलाके को नज़रअंदाज कर दिया गया। उन्होंने महकमे RDD से इलाके में नया खेल का मैदान तामीर करने की मांग की है। DD महकमा की जानिब से पिछले कई सालों से यहाँ कुछ प्ले ग्राउंड बनाए गए, लेकिन सर वो खस्ता हाली के शिकार हैं, उनमें पत्थर हैं जिसमें इसको खिलाड़ी को ज़ख्मी होने का ख़तरा है। इसलिए हमारी आला काम से गुजारिश है कि इन इलाकों की ज़्यादा थोड़ी तवज्जो दी जाए कि हमारे नौजवान बच्चे भी खेलना चाहते हैं, खेल कूद के साथ आगे बढ़ने चाहते हैं, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल खेलों के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन सर यहाँ जो प्रॉपरिंग है वो जो प्ले ग्राउंड की है
अगर चाहे त्राल में इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया गया, लेकिन सर उसका फ़ायदा तभी है जब गांव में होगा ग्राउंड, इसके स्टेडियम ग्राउंड में होगा, बच्चे गांव में सीख सकेंगे खेल। इसलिए हमारी आपकी माध्यम से आला काम से गुजारिश है कि यहाँ भी ग्राउंड दिए जाए ताकि हमारे बच्चे भी खेल कूद के साथ आगे बढ़ सकें। जनाब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्यों जी हर वक्तन क्यों जी यहाँ मौके पर आते हैं, जो करके आज का हालात में भी आप देखते हैं जो हमारा इलाका ये पिछड़ा हुआ इलाका है त्राल का, दूध मार्ग जिसको किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें प्ले फील्ड की बहुत ज़रूरत है। ये हमारे जो बच्चे हैं ये खेल रहे हैं, खेलना भी चाहते हैं और खेलते भी हैं, पर लेकिन बदकिस्मती की वजह से हमें यहाँ थोड़ी रोड की 1-2 किलोमीटर रोड है, जो हमारे पास ये रोड भी नहीं है, तो उसकी वजह से हमें यहाँ ग्राउंड के लिए जगह भी नहीं है। तो हम आपकी वसात से हमारे डिप्टी कमिश्नर पुलगामा हैं या आला हुकाम है और जितने भी हमारे ADC साहब त्राल हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं जी हमें जल्द से जल्द अगर इस स्टेडियम का कुछ हो जाए तो क्यों जी यहाँ बहुत अच्छा एक फील्ड बन जाए तो इन बच्चों को खेलने में आसानी हो जाती है। जिला बांदीपुरा के सोनावारी इलाके में मुंसिफ कोर्ट सुंबल ने चेक बाउंस केस में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने मुलजिम को 1 साल कैद और 12 लाख रुपए का जुर्माने की सजा दी। इस फैसले को माली मामलात में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए एक अहम नज़ीर करार दिया जा रहा है। मुद्दई के वकील एडवोकेट जलालुद्दीन ने इसे धोखाधड़ी के खिलाफ मजबूत पैगाम करार दिया। ऑनरेबल कोर्ट ने यहाँ पर जजमेंट अनाउंस की है, जिसमें उन्होंने मुलजिम को सज़ावार ठहराया और उसको चेक बाउंस केस में 1 साल की सज़ा और 12 लाख का जुर्माना आयद किया। ये जजमेंट हम देख रहे हैं कि ये जजमेंट जो है ऑनरेबल कोर्ट ने आज पास की है, ये उनके लिए है जो मतलब आए दिन चेक्स इशू करते हैं कि मतलब जैसा कि उनके अकाउंट में कुछ नहीं होता है लेकिन फिर भी वो चेक्स इशू करते हैं, उनके लिए ये सज़ा है, उनके लिए ये लेसन है, सबक है एक कि मतलब वो उसे परहेज़ करें। क्योंकि ये चेक बाउंस केस हाँ अगर इसमें कोर्ट में टाइम कुछ लगता है, लेकिन अल्टीमेटली इसमें क्या होता है कि वही होता है जो होना होता है कि सज़ा होता है। और देखिए आज मुलजिम को 1 साल सज़ा मिल गई और उसको 12 लाख का जुर्माना भी मिल गया। ये हमें जजमेंट जो है यहाँ पर आज देखा आपने कि सबों ने इसको अप्रिशिएट किया है इस जजमेंट को। और आप देखिए कंप्लेनेंट जो इस वक्त यहाँ पर है, आप देख रहे हैं कि मैंने इसको हमेशा देखा है, सिर्फ रोते हुए देखा है। उसके बच्चे वो सड़क पर आ गए, उसकी बीवी बीमार थी, उसके लिए पैसा नहीं था क्योंकि उसने जो पैसा लिया था वो इसने लाया था पैसा, वो उसने बैंक से लाया था पैसा और उसको दिया था, ज़मीन के आवाज़ दिया था, लेकिन वो प्रॉपर्टी डीलिंग जो है वो मैच्योर नहीं हुई है। लेकिन अल्टीमेटली उसने क्या किया है कि उन पैसों को वापसी के लिए उसने चेक दिया। इंसाफ मिला है? हाँ बिल्कुल, ये इंसाफ में बोल रहा हूँ, ये पूरे कुपवारा जिले के सरहदी इलाके करना में तहसीलदार करना ने मार्केट चेकिंग अंजाम दी और इस दौरान मार्केट में गैर मयारी अशिया को फरोख्त करने वाले दुकानदार पर 5,000 रुपए का जुर्माना आयद किया गया। दुकानों में गैर मयारी गोश्त, मछलियां और दीगर चीजें पाई गई। एक तो फ़ोन कॉल मौसूल हुई कि यहाँ शॉप वाला है तो उसके पास कुछ गैर मयारी फूड आइटम्स है। तो जो ही हम यहाँ आए, यहाँ हमने देखा है कि यहाँ पे कुछ ये चिकन, फिश और मीठी, इसके अलावा यहाँ पे हेरिसा, तो ये हमने देखा, ये पता नहीं इस पर डेट नहीं लगा था, ना मैन्युफैक्चर डेट ना एक्सपायरी डेट लगा था। तो हमने इसको मौके पे डिस्ट्रॉय किया और दुकानदार से हमने 5,000 रुपये मौके पे फाइन किया। जम्मू कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।